So the next part is nutrition, or the next life process. Now what is nutrition? It is nothing but intake of food, है ना. अब the intake can be with the help of a permanent mouth or with the help of a temporary mouth. जैसे हमारा मुंह परमानेंट है, बट जो अमीबा होता है, अमीबा के पास कोई माउथ नहीं है. वो सूडोपोडिया क्रिएट करता है, फिर वहां से खाने को इंगल्फ करता है. So nutrition is intake of food with the help of temporary or permanent mouth. और food क्यों लेते हैं अपन together? एनर्जी। हाँ, to get energy. और energy क्यों चाहिए? To perform various processes and life function. ठीक है. अब देखो यहाँ से, how do living things get their food? The general requirement for energy and material is common in all our organism, but is fulfilled in different ways. Some organisms use simple food material obtained from inorganic sources in the form of carbon dioxide and water. These organisms, the autotroph, include green plants and some bacteria. तो ग्रीन प्लांट क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ये इनऑर्गेनिक है. वाटर को लेते हैं, ये भी इनऑर्गेनिक है, और इससे बना देते हैं खाना. तो कुछ ऑर्गेनिज्म दे आर केपेबल ऑफ मेकिंग देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, तो ऑटोट्रॉप हो गए. अदर ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस. These complex substances have to be broken down into simpler ones before they can be used for the upkeep and growth of the body. तो हेट्रोट्रॉप क्या हो गए? जो ऑलरेडी बने बनाए खाने पर फीड करते हैं. To achieve this, organisms use biocatalyst called enzyme. किसका इस्तेमाल करते हैं? Biocatalyst called enzyme. अब एक नंबर का पे डेफिनेशन आ गया कि what are enzymes? Enzymes are nothing but they are biocatalysts. ठीक है, आगे देखो. Does the heterotroph survival depend directly on indirectly on autotrophs? तो जो heterotroph है, they are directly or indirectly depend on the autotrophs. Heterotrophic organisms include animal and fungi. ठीक. अब पहले अपन आते हैं ऑटोट्रॉपिक पे. ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देख लो यहाँ पे. Carbon and energy requirement of the autotrophic organisms are fulfilled by photosynthesis. तो कौन सा प्रोसेस होता है? photosynthesis. It is the process by which autotrophic take in substance from outside and convert them into stored form of energy. किस फॉर्म में स्टोर करते हैं खाने को? बताओ. स्टार्च। वेरी गुड, स्टार्च के फॉर्म में. ठीक है, आगे देखो. This material is taken in the form of carbon dioxide and water, which is converted into carbohydrate in the presence of sunlight and chlorophyll. तो क्या होता है फोटोसिंथेसिस में? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर उन लोग इनटेक करते हैं, CO2 लेते हैं एटमॉस्फेयर से, वाटर लेते हैं सॉइल से, और उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? आपके कार्बोहाइड्रेट में, in the presence of sunlight and chlorophyll. Carbohydrates are utilized for providing energy to the plant. Carbohydrate का यूज कहाँ पे हो गया? For providing energy. We will study how this takes place in the next section. The carbohydrate which are not used immediately are stored in the form of starch, ठीक? Which serves as internal energy reserve to be used as and when required by the plant. A somewhat similar situation is seen in us, where some of the energy derived from food we eat is stored in the body in the form of glycogen. हमारी बॉडी में किस फॉर्म में खाना स्टोर होता है? ग्लाइकोजन। कहाँ पे स्टोर होता है? लिवर में होता है और मसल्स में होता है. ठीक है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में. अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक. ठीक है बेटा, एक मिनट, somebody is calling me. नेक्स्ट टॉपिक है अच्छा अभी ये क्लोरोफिल की पूरी रिएक्शन. ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है. इनफैक्ट एनसीईआरटी में दिया सब कुछ इंपॉर्टेंट है. यहीं पे मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ. कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा यार. अच्छा होगा.
ये देखो, ये आपकी रिएक्शन है 6CO2 हाँ 6CO2 plus 12H2O will give C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O। ये रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की, ठीक है। ये रिएक्शन आपको याद है, मतलब इसको याद नहीं, इसको आप याद कर लेना। अच्छा सुन लो, वाटर भी एज अ बाई प्रोडक्ट निकलता है, ठीक, ये चीज ध्यान रखना। फोटोसिंथेसिस में वाटर आल्सो कम्स आउट एज अ बाई प्रोडक्ट, ये चीज आप याद रखना, ठीक है। अब देखो आगे। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन आ गया कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, क्या किसके प्रेजेंस में होगा, तो इट विल हैपन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और सनलाइट को ट्रैप कौन करता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है, ग्रीन कलर पिगमेंट, इट इज फाउंड इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। इसमें पूछ लिया बाई प्रोडक्ट क्या क्या बनते हैं, तो ऑक्सीजन एक बाई प्रोडक्ट है और वाटर भी बाई प्रोडक्ट है, ठीक है, बन जाएगा। यस सर। अब जैसे ये देखो यहाँ, लेट अस नाउ सी व्हाट एक्चुअली हैपेंस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये तीन प्रोसेस या जो तीन आपके स्टेजेस हैं फोटोसिंथेसिस के, सबसे पहला है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, ये पहला स्टेप हो गया। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो पहला प्रोसेस हो गया, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। दूसरे में लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एंड, सुन लो, कोई भी खाना है ना, फूड, उसमें कौन सी एनर्जी, उसमें केमिकल एनर्जी होती है। लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जो आपका वाटर मॉलिक्यूल है वो स्प्लिट हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन आपकी बाहर चली जाती है और ये जो हाइड्रोजन है ये रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनाने के लिए, ठीक। उसके बाद है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। तो रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ, रिडक्शन इज व्हाट, एडिशन ऑफ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाँ, तो हाइड्रोजन ऐड हो गया उसमें। तो ये तीनों स्टेप ध्यान से याद कर लेना, इससे क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द 3 स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो तीन तीन स्टेप लिख के दे देगा, एक सही दे देगा, बाकी तीन गलत दे देगा, ठीक है। देखो, दीज स्टेप नीड नॉट टू टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर, हाँ आपको इनका कोई ऑर्डर नहीं है। यहाँ देखो एग्जाम्पल, desert plant take up carbon dioxide at night and prepare an intermediate which is acted upon by the energy absorbed by the chlorophyll during the day। अब डेजर्ट प्लांट रात में CO2 क्यों लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, बताओ। Sir, because then they will, if they will take carbon dioxide during the daytime, so they will have to open the stomata, and so there will be water loss. So to prevent the हाँ, water loss. वेरी गुड। टू प्रिवेंट वाटर लॉस डेजर्ट प्लांट रात को कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, ठीक। आगे बोल रहा है, let us see how each of the components of the above reaction are necessary for photosynthesis। If you carefully observe a cross section of a leaf under the microscope, you will notice that some cell contain green color dot. These green dots are cell organelle called chloroplasts which contain chlorophyll। Let us do an activity which demonstrate that chlorophyll is essential for photosynthesis। अच्छा, लीफ का ये डायग्राम देख लो, ये इसका लैमिना है ना, ये लीफ की ब्लेड है, किनारे वाला पार्ट, ये वेन्स हैं जो ऐसे ऐसे निकलती रहती हैं। ये जो मेन वेन है ये बीच से गई है, इसको मिडरिप कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे लीफ में ये अपर पार्ट ये रेड वाला फ्लोयम है और ये लोअर पार्ट ब्लू वाला जाइलम है, ठीक। दे आर कॉल्ड द वस्कुलर बंडल और द कंडक्टिंग टिश्यू। ये जो आपका, सॉरी, ये जो आपका है, देखो यहाँ पे ये वैक्सी क्यूटिकल है। क्यूटिकल का फंक्शन क्या होता है बेटा, व्हाट इज फंक्शन ऑफ Sir, क्यूटिकल। पिछली बार पढ़ा था, याद नहीं आ रहा। हम्म। देखो वैक्सी है मतलब ठीक है, तो वैक्सी क्यूटिकल का मेन फंक्शन क्या होगा, अपर पार्ट में है ये लीफ के, इट विल प्रिवेंट वाटर लॉस, वाटर लॉस रोकता है। और जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उनका क्यूटिकल बहुत थिक होता है। और डेजर्ट प्लांट में कौन सा मटेरियल होता है जो वाटर लॉस रोकता है, 9th में था लास्ट ईयर, याद है।
सर क्यूटिन। हाँ क्यूटिन होता है। वाह युवराज, तुम तो अभी 9th ही पढ़ रहे हो। वेरी गुड। हाँ तो डेजर्ट प्लांट में क्यूटिन होता है, ठीक है। अब देखो आगे आते हैं। हम्म, तो ये हो गया कॉल्ड एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेटिव। हाँ तो क्यूटिकल का फंक्शन है वाटर लॉस को रोकना। ये आपके गार्ड सेल हैं। गार्ड सेल किसके अराउंड होते हैं? दे आर प्रेजेंट अराउंड द। स्टोमेटा। और हाँ एक क्वेश्चन इसमें और आता है कि लीफ के ऊपर सरफेस पे गार्ड सेल कम होते हैं, सॉरी स्टोमाटा कम होते हैं, और नीचे वाले सरफेस पे स्टोमाटा ज्यादा होते हैं। ऐसा क्यों? सर क्योंकि ऊपर वाले पार्ट में डस्ट जल्दी लग जाती है। हाँ डस्ट लग सकती है, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट, देखो डस्ट तो हवा के साथ चली जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर ऊपर स्टोमाटा ज्यादा होंगे तो गर्मी, जो सूरज की रोशनी सीधे ऊपर पड़ती है ना, किरणें, तो अगर ऊपर स्टोमाटा ज्यादा होंगे तो वाटर लॉस ज्यादा होगा और प्लांट आपका डिहाइड्रेट हो जाएगा। तो इसलिए नीचे स्टोमाटा ज्यादा दिए हैं, ऊपर स्टोमाटा कम दिए हैं, ठीक है। क्लियर है? यस सर। भगवान ने सब कुछ बहुत सोच समझ के बनाया है। अच्छा अब ये जो एक्टिविटी है ना, एक्टिविटी, अच्छा सॉरी, एक मिनट, इसको मुझे कॉपी पेस्ट। एक्टिविटी 6.1 बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, इससे एक ना एक सवाल पक्का आएगा। और ये मैं आपको मतलब पढ़ाऊंगा नहीं, इसका मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, ठीक है। बिकॉज आई हैव टॉट दिस ऑनलाइन, तो आप भी देखिए और हम भी देखते हैं, ठीक है। ये एक्टिविटी 6.1। चलो पहले अपन यहाँ पे आते हैं। मैं शेयर करता हूँ, ठीक है। शेयर, एक मिनट। ये आ गया एक्टिविटी। वेट, हाँ, आई विल शेयर द, अरे यार वो कहाँ गया? गूगल क्रोम गया। हम्म, दिख रहा है? अभी साउंड नहीं आ रहा होगा क्योंकि मैं, यस सर दिख रहा है। साउंड आ गया? अभी नहीं आया सर। अब मतलब आया था, मैंने पॉज कर दिया, अभी भी नहीं आया। अच्छा रुको एक मिनट, अगर साउंड नहीं आया तो वेट अ मिनट, वंस मोर, शेयर साउंड, ऑप्टिमाइज फॉर वीडियो क्लिप, अब आएगा, ये देखो। The video, and in this video we will discuss 6.1 of life process chapter, पेज नंबर 96। और इस एक्टिविटी में हमें ये शो करना है कि लीफ के जिस पार्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट है उसी पार्ट में फोटोसिंथेसिस होता है और स्टार्च का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। नाउ वी विल प्रोसीड विद द एक्टिविटी। टेक अ पॉटेड प्लांट विथ वेरीगेटेड लीफ। अब सबसे इंपॉर्टेंट, वेरीगेटेड लीफ क्या होती हैं? वेरीगेटेड लीव्स आर दोज लीव्स जिसमें ग्रीन एंड नॉन ग्रीन पार्ट दोनों प्रेजेंट है, मतलब क्लोरोफिल वाले पार्ट भी प्रेजेंट है और नॉन क्लोरोफिल वाले पार्ट भी प्रेजेंट हैं। एक सिंपल एग्जांपल है मनी प्लांट। आप सबने मनी प्लांट देखा होगा। Now keep the plant in dark for 3 days so that all the starch gets used up. अब इसको एक डार्क रूम में अपने को रख देना है ताकि सारा स्टार्च यूज अप हो जाए। नाउ कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 6 आवर्स। अब वापस से सनलाइट में क्यों रख रहे हैं? ताकि जो क्लोरोफिल है वो फिर से स्टार्च मैन्युफैक्चर करे, हमें फ्रेश स्टार्च चाहिए एकदम, इसलिए, ठीक है। अब आगे दिया है, प्लक अ लीफ फ्रॉम द प्लांट, मार्क द ग्रीन एरियाज इन इट एंड ट्रेस देम ऑन अ शीट ऑफ पेपर। ये काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बाद में हमें पता चलेगा कि जिन एरियाज में हमने स्पॉट किया था ग्रीन पार्ट, वहीं पे केवल स्टार्च का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। नाउ डिप द लीफ इन बॉइलिंग वाटर फॉर फ्यू मिनट। अब ये क्वेश्चन आता है एक्टिविटी से कि वाई आर वी डिपिंग द लीफ इन बॉइलिंग वाटर। अब देखो यहाँ पे आयोडीन सॉल्यूशन अपन डालते हैं स्टार्च का टेस्ट करने के लिए। अब जो स्टार्च है वो लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट में बना है, मतलब जब आयोडीन सॉल्यूशन क्लोरोप्लास्ट के अंदर तक जाएगा तभी तो ब्लू ब्लैक कलर आएगा। तो बॉइलिंग वाटर में क्यों डिप कर रहे हैं? बिकॉज इससे लीफ के सारे सेल डेड हो जाते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन है वो डिसरप्ट हो जाती है और सेल वॉल आपकी सॉफ्ट हो जाती है ताकि जो आयोडीन है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर तक पहुंच सके, ठीक है।
इसके बाद आफ्टर दिस इमर्स इट इन अ बीकर कंटेनिंग एल्कोहल, एल्कोहल में डाल दिया, सबको पता है शराब है ना, सभी ने देखी है, पी है ये मुझे नहीं पता बट देखी सभी ने शायद, है ना, पीना मत अच्छी बात नहीं होती है। आगे केयरफुल प्लेस द अबव बीकर इन अ वाटर बाथ एंड हीट टिल द अल्कोहल बिगिंस टू बॉयल। वाटर बाथ का मतलब है डायरेक्टली अल्कोहल में नहीं हीट करना। क्यों हीट नहीं करना? क्योंकि अल्कोहल वोलेटाइल है, आपकी लीफ को जला देगा। तो अल्कोहल में आपने लीफ को रखा, फिर एक आपको वेसल लेना है जिसमें पानी है और वो अल्कोहल वाली लीफ को उस वेसल में करना है। पहले पानी को गर्म करना है और फिर पानी की हीट से अल्कोहल और लीफ को गर्म करना है। अब क्वेश्चन आता है कि अल्कोहल में डिप क्यों किया। अब सुन लो, यहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर देना है, वो तभी आएगा ना जब आपकी लीफ ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, तभी ना ब्लू ब्लैक कलर आएगा। ग्रीन कलर के ऊपर ब्लू ब्लैक कलर आना पॉसिबल नहीं है। तो अल्कोहल का मेन फंक्शन है टू डिसॉल्व द क्लोरोफिल, और एक बार जब अल्कोहल क्लोरोफिल डिसॉल्व कर लेता है तो अल्कोहल सॉल्यूशन खुद ग्रीन कलर का हो जाता है और आपकी लीफ वहाँ पे कलरलेस हो जाती है। अब देखो इसके बाद what happens to color of leaf? The leaf becomes colorless. What is color of the solution? The solution becomes green in color. Now dip the leaf in a dilute solution of iodine for a few minutes. Take out the leaf and rinse off the iodine solution. Observe the color of leaf. अब जैसे आयोडीन सॉल्यूशन में डिप करेंगे, आप याद रख लो ये इसका कंक्लूजन, आयोडीन सॉल्यूशन स्टार्च के साथ मिलकर कौन सा कलर देता है? ब्लू ब्लैक। रट लो, ये पक्का आता है सवाल। आयोडीन रिएक्ट्स विद स्टार्च टू गिव ब्लू ब्लैक कलर। ठीक है। What can you conclude about presence of starch in various areas of the leaf? तो कंक्लूजन क्या निकला? स्टार्च बस उन्हीं एरियाज में फॉर्म हुआ है जहाँ पर क्लोरोफिल था, जो नॉन ग्रीन पार्ट थे वहाँ पे आपका स्टार्च फॉर्म नहीं हुआ है। दिस कंक्लूड्स द एक्टिविटी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू। हाँ, समझ में आई? Yes, sir. नहीं Yes, आई? sir. हाँ, अब इसमें देखो जो एक्टिविटी है ना, एक मिनट मैं दोबारा से शेयर कर देता हूँ। एक मिनट। UN General Assembly 34 गुरलीन कौर 11D अनम तबरेज। अमेजिंग, थैंक यू सो मच सर फॉर द एक्सप्लेनेशन। मैं अपने वीडियोस में ज़रा टैग नहीं डालता ना, मतलब वो सब नहीं कर पाता टैग, और तो मेरे वीडियो चल नहीं पाते। मैं भी प्रचार प्रसार करूँ तो मेरे वीडियो भी चल जाए। चलो कोई बात नहीं, अपना भी टाइम आएगा कभी ना कभी। हाँ, जहाँ जहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है ना, व्हाट हैपेंस टू कलर ऑफ लीफ, व्हाट इज कलर ऑफ द सॉल्यूशन, यहाँ पर यही सब क्वेश्चन एक्टिविटी से पूछे जाते हैं। व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन वेरियस एरियाज ऑफ द लीफ। तो सर इनके आंसर एक बार और बता दीजिए। अब इनके आंसर हम दोबारा नहीं बताएंगे, हम वीडियो शेयर कर देंगे, तुम दोबारा देख लेना, ठीक है? ठीक है सर। कुछ मेहनत आप भी करिए, मैं थक जाता हूँ। थकने वाली बात नहीं, थोड़ा आप भी अपनी तरफ से एफर्ट करिए, ठीक है? तो ये एक्टिविटी हो गई 6.1। इसमें ये प्रूव हो गया कि भैया जहां पर क्लोरोफिल है वहीं पे स्टार्च बनेगा और वहीं पे ब्लू ब्लैक कलर आएगा। बाकी जहां पर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है, जो येलोइश सेक्शन है, वहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा और स्टार्च नहीं बनेगा। ठीक, अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट टॉपिक है आपका, एक मिनट, नेक्स्ट टॉपिक, ओ सॉरी क्या खुले पड़ा है यार। हाँ, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमटा। ठीक, देखो यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पढ़ लेना। मतलब इसमें से एक दो सवाल आएंगे छोटे छोटे, डायग्राम आपको याद रहेगा तो थोड़ा आपको हेल्प मिल जाएगी। लेट मी शेयर द स्क्रीन। Come too far over here. Let us now study how plant obtain carbon dioxide. In class 9th, we have talked about stomata, which are tiny pores present on the surface of leaf. अच्छा, stomata कहाँ present होता है? Surface of leaf को अपन क्या बोलते हैं? Sir, epidermis. हाँ, वेरी गुड। सरफेस ऑफ लीफ को अपन बोलते हैं एपिडर्मिस, मतलब प्लांट की स्किन, प्लांट की आउटर कवरिंग। So it can come as a 1 mark question. Massive amount of gaseous exchange take place in the leaf through these pores for the purpose of photosynthesis. दूसरा सवाल आ गया, gaseous exchange कौन करवाता है? स्टोमाटा।
But it is important to note here that exchange of gases occurs across the surface of stem. अब देखो यहाँ पे भी एक सवाल बन गया, कहाँ कहाँ गैस एक्सचेंज होता है? स्टेम में होता है, रूट में होता है, लीव्स में होता है, तीन जगह होता है बस, केवल लीव्स में नहीं होता है, स्टेम्स में भी होता है, रूट में भी होता है और लीव्स में भी होता है। याद रहेगा? Yes, sir. आगे, since large amount of water can also be lost to the stomata, the plant closes these pores when it does not need carbon dioxide for photosynthesis. तो स्टोमाटा से वाटर लॉस भी होता है, इसलिए प्लांट अपनी पोर्स को बंद कर लेते हैं जब CO2 की जरूरत नहीं होती। आगे, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज अ फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल। तो कौन, पहले अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, हु कंट्रोल्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा? आपका आंसर हो गया गार्ड सेल। ठीक है, द गार्ड सेल्स स्वेल when water flow into them, causing the stomatal pore to open. Similarly, the pore closes if the guard cell shrinks. अब सुन लो, ये थोड़ा वैसा है, यहाँ तो बहुत सिंपल दे दिया। देखो होता कैसे है, ये अब ये बंद है स्टोमाटा, ठीक है, ये गार्ड सेल है आपके। सबसे पहला काम जो गार्ड सेल करते हैं वो क्या करते हैं? दे एक्टिवली एब्जॉर्ब आयन। क्या करते हैं? आयंस को एब्जॉर्ब करते हैं, Na+, Mg+, ये सब आयन एब्जॉर्ब कर लेते हैं साइड अपने नेबरिंग सेल से। एक्टिवली मतलब क्या? एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? सर जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एटीपी का इस्तेमाल करके। अब जैसे इन्होंने आयन एब्जॉर्ब कर लिया, इनकी कंसंट्रेशन बढ़ गई। अब इनकी कंसंट्रेशन बढ़ गई, सराउंडिंग में क्या है? पानी ज्यादा है और इसमें सॉल्ट ज्यादा है, तो नेबरिंग सेल से अब पानी इसमें कूद जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ, कौन सा प्रोसेस? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस। तो ये गार्ड सेल आपके फूल जाएंगे। अब देखो है कैसा, गार्ड सेल किडनी शेप है ऐसा, ठीक है। तो जनरली अगर पानी भरता तो पानी तो हर साइड से प्रेशर डालता, तो गार्ड सेल इस तरफ तो एक्सपैंड होते, लेकिन यहाँ से भी तो खींच जाते ना अंदर से। आप ध्यान से देखो, अगर भले कोई किडनी शेप का क्यों ना है, अगर मैं उसमें पानी भर दूं तो वो तो हर तरफ से फूलेगा ना, पानी तो प्रेशर हर तरफ लगाता है। तो कायदे से ऐसे गार्ड सेल ऐसा ही बंद है और मैंने पानी भरा, तो इसको और ऐसा हो जाना चाहिए कायदे से, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसे खुल जाता है इस तरह। क्यों खुलता है? क्योंकि देखो यहाँ पे ये जो गार्ड सेल देखो, ये गार्ड सेल की इनर वॉल है, दिख रही है वॉल, ये येलो येलो, देखो इनर वॉल काफी मोटी है। तो क्योंकि इनर वॉल थिक होती है गार्ड सेल की, तो जब पानी इसके अंदर भरता है तो यहाँ पर जो पानी का प्रेशर है, अब क्योंकि वॉल इतनी थिक है कि पानी ज्यादा प्रेशर लगा ही नहीं पाता, तो ये वॉल जैसे की तैसी रहती है। लेकिन जो आउटर वॉल है, ये वाली वॉल, ये वॉल एकदम थिन है, तो पानी सारा प्रेशर वहीं लगाता है और वो वॉल बाहर की तरफ एक्सपैंड हो जाती है और स्टोमाटा खुल जाता है। क्लियर है ये चीज? तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या है रखना है यहाँ पे, कि द इनर वॉल ऑफ गार्ड सेल इज थिक ड्यू टू विच द प्रेशर ऑफ वाटर इज मिनिमम। मिनिमम कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो इनर वॉल तो वैसी रहती है, बट द आउटर वॉल इज थिन, तो ये ऐसे खिंच जाता है इस तरफ और आपका स्टोमाटा ओपन हो जाता है। बन जाएगा बेटा। यस सर। आगे कह रहा है, सिमिलरली द पोर क्लोजेस। अब जब गार्ड सेल को क्लोज होना है मतलब, तो फिर से वही काम करेगा रिवर्स ऑर्डर में, वो एक्टिवली आयन को लूज कर देगा। आयन को लूज कर दिया तो अब गार्ड सेल में पानी ज्यादा हो गया और नेबरिंग सेल में आयन ज्यादा हो गए। अब क्योंकि नेबरिंग सेल में आयन ज्यादा हो गए, तो पानी ऑस्मोसिस के थ्रू गार्ड सेल से नेबरिंग सेल में कूद जाएगा और आपका ये गार्ड सेल श्रिंक हो जाएंगे, स्टोमाटा आपका क्लोज हो जाएगा, बन जाएगा। जस्ट उल्टा है ओपनिंग का। यस सर। तो इसमें एनर्जी लगती है, ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब एक टॉपिक और बचा, उसकी भी एक्टिविटी है, 1 मिनट। ये एक्टिविटी है टू शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ये तो वैसे अर्चिता तुम तो पढ़ चुकी ना ये वाला चैप्टर? यस सर। गुड, मेरे को याद है इस वाले क्वेश्चन में शायद वो आया था, रिएक्शन वाला तो कुछ बताया था शाम भोगिनी मैडम ने, क्या लिखा है, एक्टिविटी 6.2 है ना। बहुत, 1 मिनट मैं इसको स्टॉप शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये भी मैं आपको दिखाऊंगा।
मैं अपना दिखाऊंगा, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, ये। चलो अब देख लो, अब आज जब बैठे हो तो आज देख ही लो, फिर कल से पढ़ते हैं, ठीक, क्लास 10th। स्टूडेंट्स वी आर बैक विथ अनदर एक्टिविटी दैट इज एक्टिविटी 6.2 और इस एक्टिविटी में हमें शो करना है दैट कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. So here goes the activity. Take 2 healthy potted plant which are nearly the same size. Keep them in dark room for 3 days. क्यों रखा dark room में? ताकि सारा starch use up हो जाए. Now place each plant on separate glass plate. Place a watch glass containing potassium hydroxide by the side of one of the plant. The potassium hydroxide is used to absorb carbon dioxide. तो आप देख सकते हैं जो बीकर ए है उसमें KOH रखा गया है और जो आपका कंटेनर बी है उसमें KOH नहीं रखा गया है. कवर बोथ द प्लांट सेपरेटली विद बेल जार. यूज वैसलीन टू सील द बॉटम ऑफ द जार ऑफ द ग्लास प्लेट सो दैट सेटअप इज एयर टाइट. अब ये क्वेश्चन आता है क्यों यूज़ किया हमने वैसलीन? टू मेक द सेटअप एयर टाइट, ताकि एयर ना अंदर आए ना बाहर जाए. नाउ कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 2 hours. अब जब प्लांट को सनलाइट में रखेंगे तो क्या होगा? फोटोसिंथेसिस, जिससे आपका स्टार्च फॉर्म होगा. प्लक अ लीफ फ्रॉम ईच प्लांट एंड चेक फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च एज इन द अबव एक्टिविटी. स्टार्च का टेस्ट कैसे करोगे? बाय यूजिंग आयोडीन सॉल्यूशन. जो आपने एक्टिविटी पहले की थी आपको वही एक्टिविटी दोहरानी है. डू बोथ द लीव्स शो द प्रेजेंस ऑफ द सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च? आपका आंसर क्या होगा? नो. वॉट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्टिविटी? क्या ऑब्जर्वेशन होगा? जो आपका बेल जार ए है उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा है. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मेन काम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है, उससे रिएक्ट कर जाता है. तो बेल जार ए में जो आपका CO2 का अमाउंट है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, तो फोटोसिंथेसिस भी कम होगा और स्टार्च का फॉर्मेशन भी कम होगा. The reaction has been given. KOH plus CO2 will give K2CO3 plus H2O. अब K2CO3 कैसा सॉल्ट है? बेसिक सॉल्ट है, क्योंकि KOH स्ट्रॉन्ग बेस है और CO2 वीक एसिड है. और जो आपका बेल जार बी है उसमें आपका सफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्टार्च फॉर्म होगा और बहुत डार्क ब्लू ब्लैक कलर आएगा. सो दिस एक्टिविटी शोज दैट carbon dioxide gas is necessary for photosynthesis. I hope आपको समझ में आया होगा. Thank you and we'll be back with another video. Bye. तो बस कुछ नहीं है, जिसमें KOH रखा है, KOH एब्सॉर्ब कर लेगा कार्बन डाइऑक्साइड को, K2CO3 बना लेगा प्लस वाटर बना लेगा और फोटोसिंथेसिस नहीं होगा. क्लियर है? Yes, sir. Yes. चलो ठीक है, फिर कल पढ़ते हैं ना. ओके Okay, sir. है ना. Thank you, sir. चलो थैंक यू बेटा, बाय बाय, टेक केयर, Thank you, sir. बाय.